Srila श्रीला Prabhupada प्रभुपाद had been टॉम्किन स्क्वायर leading पार्क में इन these साप्ताहिक sankirtans कीर्तनों को किया in करते थे, Tompkins Square Park at the और beginning. जब वे And भारत then या when he सैन was फ्रांसिस्को में away at होते थे India and San तब भक्त खुद Francisco, से the जाकर इस devotees कीर्तन को continued करते on थे। their ये own. जो गले में जगन्नाथ का This Lord ताबीज़ Jagannath आप देख doll, रहे हैं, really, or it isn't ताबीज़ ही really कहेंगे, a इसे little छोटा doll of विग्रह तो Lord नहीं कहा Jagannath. जाएगा। एक And the समय सभी devotees, भक्तों के at गले one में होने point, लगा all था, had them और hanging हम on लोगों के their पास necks. श्रीला प्रभुपाद के लिए बहुत And सवाल we had a होते lot थे, of questions. जैसे We said, क्या Srila ताबीज़ को Prabhupada, पहन is के it all शौच right to जा go into the सकते हैं, bathroom with और Lord उन्होंने Jagannath कहा नहीं, hanging around your तुम्हें neck? उन्हें निकाल कर He जाना said you चाहिए। should तो take हमारे him पास off before you go व्यवहार into और the शुद्धि को bathroom. लेकर के So we had बहुत some very प्रश्न हुआ basic करते थे, questions about क्योंकि etiquette at हमें that कुछ भी point. नहीं पता We था। didn't know anything. The devotees had seen in second volume of भक्तों ने Prabhupada's प्रभुपाद के Bhagavatam, भागवतम के दूसरे there खंड was में a देखा था, verse and a एक श्लोक के in तात्पर्य purport. में It प्रभुपाद ने was written कृष्ण in के verse नामों को form, लिखा just था। names of Krishna. Hey Krishna Govinda Hare Murari, Hey Nata Narayana Vasudeva. And the और purport, तात्पर्य में प्रभुपाद ने Prabhupada was समझाया था कि explaining that कृष्ण के Krishna एक नाम is में ही ये all सब of है। those in one. तो हमने सोचा कि ये एक So we तरह का thought this मंत्र was ही a है, mantra of some और kind. क्योंकि They're ये obviously कृष्ण names के of ही नाम Krishna, हैं, so हमने we इसे started कीर्तन में गाना chanting. We शुरू put कर it दिया, to सभी वाद्य music. यंत्रों के साथ। Of course, with all ऐसे the various कीर्तन एक instruments. संगीत We were समारोह singing, बन it was जाता kind था, of like a और hootenanny. I mean, we हमें were बीच बीच में really ये नया having a मंत्र गाने में ball काफ़ी chanting this आनंद आता mantra, था, because this was at the beginning. क्योंकि There were हमारे not पास very many महामंत्र mantras के अलावा other than Hare बहुत मंत्र Krishna. नहीं थे। So तो he was singing this, हम and इसे at गा that रहे थे, time और जब Prabhupada प्रभुपाद arrived. आए तो हमने We all उन्हें bowed दंडवत किया। down, वे paid व्यास आसन पर obeisances, and बैठे, bowed in the और Vyasasana, उन्होंने हमसे कहा, and ओह, he तुम्हें ये spoke मंत्र to us and किसने दिया said, है? "Oh, who has given you और this किसी ने mantra?" कहा, प्रभुपाद, हमने And इसे आपके somebody भागवतम से said, पढ़ा "Oh, है। we saw this in your और उन्होंने कहा, Bhagavatam, नहीं, Prabhupada." इसका उच्चारण And he नहीं said, करना चाहिए, This should क्योंकि ये not be परंपरागत chanted. नहीं है। He और said, हम "This लोग is not अचंभित bona क्या, fide." एकदम ही विचलित हो गए। And we were just, talk about thunderstruck. We were so पर उन्होंने आगे bewildered. समझाया कि And he भले ही proceeded ये to कृष्ण के explain, नाम he हैं, said that even पर their जब names तक of मंत्र Krishna, परंपरागत unless रूप the से नहीं mantra दिया is जाए, given by the उसका disciplined उच्चारण नहीं करना succession, चाहिए। it shouldn't be chanted, even though they're names of Krishna. And there's a verse like that. और फिर saying उन्होंने एक श्लोक that it बताया has जो to be कहता है from कि the मंत्र को sampradaya. संप्रदाय से आना जरूरी है। So right after तो that, उसके then तुरंत he बाद said, उन्होंने "Oh, कहा, so you want तो another क्या mantra तुम्हें to एक chant?" नया मंत्र चाहिए And everybody उच्चारण just के लिए? spontaneously और said, सभी लोग "Yeah," जोर से हाँ प्रभुपाद kind of बोले, cheered. और फिर उन्होंने गाया। So he started singing Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaur Bhaktivinoda. और तब And से then he उन्होंने introduced इसे it in कीर्तन के Kirtan. साथ करने का नियम बना दिया। So about a week or प्रभुपाद के so आने के एक या before दो हफ्ते Prabhupada पहले मैंने arrived, पूरे I put शहर up में ऐसे हजारों hundreds पर्चे of चिपका these दिए थे, flyers all over the city दुकानों at पर, lampposts खंभों and पर और हर billboards जगह प्रभुपाद and की stores भक्ति योग and भगवत place I गीता could कक्षा का advertising प्रचार उस पर Prabhupada's छपवा Bhakti कर। Yoga and Bhagavad Gita classes. Prabhupada always had his trunk as his प्रभुपाद desk. की मेज Wherever हमेशा we उनकी went, पेटी हुआ he had करती his थी। Indian trunk, जहाँ भी हम जाते थे, and all of his उनकी stuff would fit भारतीय in it, and पेटी then we उनके would move साथ to रहती another थी। city. उनका And सारा then सामान whenever we उसमें got आ to जाता था, whatever room और we were जब भी going to हम be नए in, शहर then जाते I'd take तो all the जिस stuff out रूम of में his trunk and ठहरते, arrange his उनकी room, and पेटी his का trunk सामान was his निकालकर desk. उसकी This is how मेज he बनाकर मैं was उस पर normal. जमा And दिया he would करती sit थी, on the floor. और वे फर्श पर So बैठते थे। I would तो मैं उनके commonly साथ spend दिन के करीब 2 or 3 2-3 hours a घंटे day बैठकर sitting in डाक front of him पत्रों को taking dictation उनके of कथन letters, अनुसार because लिखती थी। often Prabhupada would just प्रभुपाद talk. अधिकतर केवल बात ही But you करते see, थे। there weren't so उस many समय हमारे letters पास in those बहुत days. पत्र There नहीं were होते maybe थे वापस 10 भेजने को, a करीब day, 10 एक दिन में या sometimes और less. कम। और And इसलिए so there जब was समय time, होता and था he would तब talk वे हर about चीज़ के बारे में बात everything. करते थे। Trains ट्रेनें, and बसें, buses and which क्या is बेहतर better, होती trains or हैं, buses, about शहर के बारे tigers, में, about काफ़ी all चीज़ों के kinds of बारे में। things. He would sit and और talk. One सबसे of the सुंदर समय sweetest शाम times का was होता in the था, evening जब when गौर सुंदर Gaursunder उन्हें would मसाज give him देते थे। massage. Because शाम all तक the दिन work का for the सारा day had काम हो been चुका done. होता था, और मैं And I would दहलीज sit पर at the बैठकर doorway and उन्हें बस listen. सुना करती थी। We हम were like बिल्कुल family. परिवार It's जैसे just रहते he used थे। to say वे we've कहते become भी just थे, like a हम family. एकदम He परिवार used जैसे to ही tell तो me हैं। my mother वे मुझे died at कहते an थे, early age. मेरी Krishna माता has sent कम you to उम्र be में my चल mother. बसी थी, And actually, I was कृष्ण only ने तुम्हें 21 मेरी years माता old, बनने के लिए or भेजा 20 है। years old. और And उस he समय was तो the मैं केवल age of my 20 या 21 grandfather साल because की he थी। was in his
और उनकी उम्र मेरे दादाजी होने लायक थी। जब भी मैं अपार्टमेंट किराए से लेने की बात करती तब मैं यही कह देती कि मुझे अपने दादाजी के लिए इसे लेना है। Once they called him, he was coming, and Jadurani, एक who was बार not जब much of a प्रभुपाद cook, आने वाले थे, asked him फ़ोन पर जदुरानी जो बहुत if he प्रवीण would be रसोइया eating नहीं before थी, he came, उनसे पूछती or है whether they should कि have क्या वे something प्रसाद for लेकर him to आएंगे eat when या he आते arrived. साथ उनके प्रसाद का बंदोबस्त किया जाए। और प्रभुपाद ने कहा, And मैं so तो बिल्कुल Prabhupada गाय said, की तरह "I हूँ, am just like एक a जगह cow. चरने के I बाद can दूसरी eat in जगह भी one चर pasture सकता हूँ। and then eat in another pasture also."
नाना शास्त्र विचारणं कनिपुनं सद्धर्म संस्थापकं. That's Damodar offering ये obeisance दामोदर दास हैं with the जो camera. कैमरा चालू करके दंडवत कर रहे हैं. ये है असल में That's भक्तिप्रद devotional फिल्म. filmmaking. During that Boston trip, इस बॉस्टन की यात्रा में हर हफ्ते ही कोई न कोई न्यूयॉर्क से आता था. सारे वहाँ के भक्त ब्रह्मानंद, राय राम, रूपनुग, और बॉस्टन एक छोटा मंदिर हुआ करता था, 3 से 5 लोग. पर प्रभुपाद जब वहाँ थे तब न्यूयॉर्क के भक्तों से वो भरा हुआ होता था. मुझे याद है ब्राह्मण दीक्षा के एक दिन पहले हम सब पैदल घूमने निकले थे और मैंने कहा बॉस्टन ब्राह्मण, और प्रभुपाद बोले हाँ हाँ बॉस्टन ब्राह्मण्स. हम 6 लोग थे जिन्हें जनेयू मिला था. I quipped, Boston Brahmins. Yes, Boston Brahmins. और सभी महिलाएं नाराज थीं और वे नहीं आई समारोह में. वे इतनी नाराज थी कि हमें तो दूसरी दीक्षा मिल ही नहीं रही, हम क्या करने They जाएं. raised a fuss, and they didn't show up. They were so angry that they weren't going to get second initiation. They didn't come. Gursinder really wanted this Gayatri mantra, so he talked to Prabhupada. गौर सुंदर बहुत तरीके के ग्रंथ पढ़ते थे और ये गायत्री मंत्र बहुत रुचि से लेना चाह रहे थे. इसलिए उन्होंने प्रभुपाद से पूछा इस बारे में, तो प्रभुपाद ने उसकी हाँ भर दी और उन्हें दूसरी दीक्षा देने का बंदोबस्त किया जाने लगा. तो मैं उनसे सड़क पर मिली और उन्होंने मुंडन करवा रखा था जो मुझे अजीब लगा, और उस रात उनकी दूसरी दीक्षा होनी थी जिससे मैं नाराज थी क्योंकि वे गौर सुंदर को कोई मंत्र देने वाले हैं लेकिन मुझे नहीं देंगे. तो मैं बहुत ही अलग थलग महसूस कर रही थी. तो जब दीक्षा का समय आया मैंने गौर सुंदर से मुंह फुलाकर कहा मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी. और जब वे लोग चले गए तब मैंने सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूँ. मैं नहीं चाहती कि वहाँ नहीं रहूँ. तो मैं भाग कर दरवाजे के बाहर आई और मंदिर तक 10 ब्लॉक दूर भाग कर पहुंची और जोर से दरवाजा खोल के अंदर आई. और प्रभुपाद वहां बैठकर दीक्षा दे रहे थे. वे ऊपर देखे और कहे गोविंद दासी, मैं सोच ही रहा था कि तुम कैसे दूर रह सकती हो, तुम्हें तो मुझको सुनना कितना पसंद है. और वे चाहते थे कि मैं आऊं पर मैं बहुत ज़्यादा नाराज थी. और क्योंकि मैं इतनी नाराज थी उन्होंने निर्णय किया कि लड़कियों को भी गायत्री मंत्र मिलेगा. जतुरानी मुझसे ज़्यादा नाराज थी और उन्होंने हम लोगों को दूसरे दिन शाम में ब्राह्मण दीक्षा दी क्योंकि वे जानते थे कि इस देश में लड़के और लड़कियों की शिक्षा में भी भेद नहीं किया जाता है. That in this country, the girls and the boys are educated in the same way. On this particular इस day, दिन जिसे आप देख रहे हैं हम प्रभुपाद के साथ डाउनटाउन गए जहाँ पर वे पहली बार जलदूत जहाज से उतरने के बाद गए थे क्योंकि जो कैप्टन थे जहाज के उन्हें कुछ खरीदारी करनी थी और प्रभुपाद याद करके अलग अलग जगहों को अंकित कर रहे थे. और दूसरे दिन प्रभुपाद सभी भक्तों को लेकर वहाँ गए जहाँ वे पहली बार जहाज से उतरे थे. मैं सबसे पीछे थी इसलिए भाग के आगे गई जिससे उनके साथ चल सकूं. और वे मेरी तरफ मुड़े और कहा यदि गीदड़ प्रशंसा करें तो उसमें क्या बड़ाई है, यानी कि भौतिक प्रशंसा के पीछे मत भागो. और फिर वे बोले किसी भी बड़े शहर का ये स्वभाव होता है कि चीज़ें तोड़ी जाती हैं और फिर से जोड़ जोड़ के बनाई जाती हैं. तोड़ना और जोड़ना, तोड़ना और जोड़ना. हमें इसी को रोकना है. हमें माया के साथ संबंध तोड़ना है और कृष्ण के साथ जोड़ना है. प्रभुपाद टैक्सी से आए और उस समय भक्त ग्लेनविल एवेन्यू के मंदिर में कीर्तन में भाव विभोर थे. उस समय हम फ्रैंक अगरबत्तियां उपयोग करते थे और पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था. और जब प्रभुपाद अंदर आए तो हम सब आनंद की पराकाष्ठा में थे. आप अंदाजा नहीं लगा सकते प्रभुपाद का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता था. उनका चलना, उठना, बैठना, वे हमेशा परमानंद में होते थे और हम उसे अनुभव करते थे. मुझे याद है वे व्यास आसन पर बैठे और कहा रहस्य की बात यह है कि हमें प्रार्थना करते रहना है उसी समय जिस समय हम कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहे होते हैं कि हे कृष्ण मुझे अपने सेवक समाज में जगह दे. All along, everyone knew him as Swamiji. This is up until May of 1968.
सभी लोग उन्हें स्वामी जी के नाम से जानते थे। ये 1968 के मई महीने तक हुआ और गौर सुंदर मुझे गोविंद जी बुलाना चाह रहा था, इसलिए प्रभुपाद से उसने ये पूछा और प्रभुपाद ने कहा, जी तो एक तीसरी श्रेणी का संबोधन है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इसे गोविंद जी न ही बुलाओ। तो मैं एकदम से सीधे होकर बैठी और कहा, अगर यह एक तीसरी श्रेणी का संबोधन है तो हम आपको क्यों जी बुला रहे हैं स्वामी जी? और उन्होंने कहा, ये जरूरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। और मैं अपनी बात पर अड़ गई, नहीं ये बहुत जरूरी है। अगर यह तीसरी श्रेणी का संबोधन है तो हम आपको ऐसे नहीं बुलाना चाहते, हम आपको पहली श्रेणी के संबोधन से बुलाना चाहते हैं। तो बताएं कि आपको किस नाम से बुला सकते हैं। और वे बहुत विनम्र हो गए, बहुत मना करने लगे, पर मैं अपनी बात पर अड़ी रही, नहीं हमें इसे तो बदलना ही पड़ेगा। और तब वे बोले, तुम मुझे गुरुदेव, गुरु महाराज या प्रभुपाद बुला सकते हो। तो मैंने कहा, ये तो 3 संबोधन हुए, मुझे इनमें से एक सबसे श्रेष्ठ वाला बताएं, कौन सा है? तो उन्होंने कहा, इनमें से सबसे श्रेष्ठ तो श्रीला प्रभुपाद है। तो मैंने कहा, बस आज से आप श्रीला प्रभुपाद कहलाएंगे। और मैंने सभी भक्तों को ऐसा बता दिया। हालांकि कुछ भक्तों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें अनुप्रास जैसा शब्द है, प्र भ प, और स्वामी जी तेजी से बोला जा सकता है। पर धीरे धीरे हम सभी उन्हें श्रीला प्रभुपाद कहने लगे। A total of about 15 करीब 15 लोग थे जो उत्सव के बाद तुरंत ही मंदिर में रहने लग गए थे। मंदिर बहुत छोटा था, स्टोर फ्रंट जैसा, जिसमें डच स्टाइल के दरवाजे थे जिन्हें श्याम सुंदर ने बनाया था। ये पारिवारिक माहौल जैसा था। उन दिनों कोई मंगल आरती नहीं होती थी, कोई किताबें नहीं होती थी, तो ये केवल हरि नाम संकीर्तन की शक्ति थी और रथ यात्रा का अद्भुत आकर्षण था जिससे लोग आके जुड़ रहे थे। Rath Yatra festival that was drawing the devotees into the temple. This is actually the second Rath Yatra. ये जो आप देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को की दूसरी रथ यात्रा का है। 1967 पहली यात्रा एक ट्रक पर हुई थी और यह पाश्चात्य जगत का असल मायने में पहला रथ है जो मैंने और जयानंद ने कुछ भक्तों के साथ मिलकर बनाया था। हम लाल लकड़ी को मोड़कर छत्र बना रहे हैं और पूरा रथ लाल लकड़ी से बना था, जो हमें एक घर तोड़ने वाली कंपनी से मिला था जो फ्रांसिस्को में घरों को तोड़ा करती थी। हमने हर लकड़ी पर रेत लगाई जिससे वो नई लकड़ी जैसी लगे। अब आपको ऐसी लकड़ी कहीं नहीं मिलेगी। और हमने कुछ हफ्तों लगकर मंदिर के पीछे फ्रेडरिक स्ट्रीट पर पार्किंग की जगह में इसे बनाया। हमने जानबूझकर इसे ऊंचा नहीं किया क्योंकि उस समय ऊपर से बिजली के तार निकलते थे। रथ का कपड़ा मालती और दूसरी लड़कियां सिल दिया करती थीं। यात्रा के बाद रथ को ध्वस्त करके लकड़ियां हटा दी जाती थी। When the parade was finished, they were dismantled in place and the wood was hauled off and disposed of. And Malati and the other girls sewed the cloth covering. That year was ये साल पहला साल था जब जगन्नाथ को हमने पोशाक पहनाई थी। प्रभुपाद ने कहा हमें इनके लिए पोशाक बनानी होगी और उन्होंने चित्र बना के बताया। श्याम सुंदर चौंक गए क्योंकि उन्होंने विग्रहों के ऊपर रंग कलाकारी बहुत अच्छी की थी और वे हमसे बोले ये पोशाक तो मेरी कला को ढक देंगे। जमुना और हर्ष रानी तुरंत काम पर लग गईं और सुंदर पगड़ी और पोशाकें बना दी। making beautiful outfits and turbans. The very first clothing or decoration that was given to Lord सबसे पहला अलंकरण जो जगन्नाथ को दिया गया था वो प्रभुपाद ने दिया था 1967 के दिसंबर महीने में, जब वे भारत से वापस आए थे दिल के दौरे से ठीक होकर। और जब प्रभुपाद हवाई जहाज से बाहर आए तो पहली बार उनके पास सन्यास डंडा था। पहली बार हमने प्रभुपाद को सन्यास डंडे के साथ देखा था।
और उस डंडे से छोटी पोटली लटक रही थी। ये देखने में जिज्ञासा जागृत कर रहा था, क्योंकि हमें लगा डंडे को सामने रखा जाता है, पर प्रभुपाद ने उसे कंधे पर रखा था। और हम जब उनके अपार्टमेंट में उन्हें लेकर आए, उन्होंने अटैचियां खुलवाई और वे सभी लड़कियों के लिए उपहार लाए थे। सभी के लिए साड़ियाँ थीं, और हमारे मंदिर के लिए पहला उपहार वो नारियल की घिसनी लाए थे। पर उस छोटी पोटली को उन्होंने खोला और उसके अंदर 3 रेशम की मालाएं थी, जो कि विग्रहों की दुकान पर मिलती थी, पर बहुत छोटी होती थी। ये मालाएं जो प्रभुपाद लाए थे, सफ़र की वजह से दब गई थी और सुंदर नहीं दिख रही थी। हमने पूछा ये क्या है, तब वे बोले कि ये अलंकार हैं जो हम जगन्नाथ को पहना सकते हैं, और हम उन्हें पोशाक भी पहना सकते हैं। तो हमने सोचा किस तरह की पोशाक, क्या उन्होंने पहले से पोशाक नहीं पहन रखी है जो चित्र के रूप में उन विग्रहों पर है? प्रभुपाद बोले नहीं, तुम्हें कभी कभार ही विग्रह मिलेंगे जिन पर पोशाक बनी होगी, और कभी आभूषण भी होंगे, पर नहीं, पोशाक फिर भी बनाई जा सकती है। तो किस तरह के कपड़े जगन्नाथ को आएंगे? तो प्रभुपाद ने कहा, देखो ऐसा करो, वे एक पगड़ी पहनते हैं, एक शॉल ओढ़ते हैं और नीचे का एक आंचल। फिर उन्होंने पूछा कि कौन इस पोशाक को सिलने की सेवा को करेगा, और हर्ष रानी और यमुना ने कहा, हम इस सेवा को करेंगे। तो 1968 की रथ यात्रा में हम बिल्डर लोगों के साथ काम कर रहे थे, और उनके चित्रण के अनुसार हमने ये बहुत सुंदर केसरी और सुनहरे रंग के छाते बनाए, जो मिलकर एक छत्र जैसे दिख रहे थे। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा लाल सैटिन कपड़ों में, और आप उन्हें देख सकते हैं, वे लाल पगड़ी और सुंदर माला के साथ कितने अद्भुत दिख रहे हैं। Now Jagannath, Subhadra and Balaram were in red satin, and you can see the pictures of them. We even managed to get some wonderful garlands of fragrant flowers for this, red turbans. Jayananda planned the car and built the car, and subsequently जयानंद ने रथ के बनावट की योजना बनाई थी और रथ को भी बनाया था, और आने वाले सालों में उन्हें मिस्टर रथ यात्रा बुलाया जाने लगा। वे यात्रा के एक दिन पहले सोते ही नहीं थे, और हर साल इसे और अच्छा बनाने लगे, बेहतरीन सजावट, और एक रथ से अब 3 रथ होने लगे थे। ये सबसे पहला रथ है जो उन्होंने बनाया था, और ये बहुत अद्भुत था। तभी से आज तक ये सैन फ्रांसिस्को की परंपरा बन गई। ये दिन भगवान जगन्नाथ के लिए सैन फ्रांसिस्को के अधिकारियों ने सम्मानित किया। And this is acknowledged by the officials of San Francisco. One very exciting. इस यात्रा की एक रोमांचक चीज मेरे लिए ये प्रार्थना थी। Was this prayer, Gauranga balite habe pulaka sharira. This bhajan. ये भजन इस यात्रा के मुख्य विषय जैसा था। जब कोई कीर्तन नहीं हो रहा होता था या लोग गाते थक जाते थे, तब ये भजन मेगाफोन पर प्रभुपाद की आवाज में चलता था। और कभी ये यात्रा के बीच में भी बजाते थे और अंत में भी। जब रथ समुद्र के तट पर पहुंचा, तब ये भजन घंटों तक चलता रहा। मुझे याद है, मैं तट पर थी, और जब हवा चलती थी तब वो इस आवाज को बढ़ाती, घटाती और पास लाती थी। ये मेरे स्मृति पटल पर अंकित है। ये भजन मुझे इस रथ यात्रा का मुख्य विषय लगता है, जिसमें महाप्रभु का जगन्नाथ के प्रति विरह अनुभव होता है। और मुझे याद है, जब तट पर एक रात को हम दिन की अंतिम प्रार्थनाएं कर रहे थे, तब प्रभुपाद जय तुलसी देवी के बाद बोले, He said, all glories to the Pacific Ocean,
And we said, Hare Krishna. And he said, all glories to the Pacific Ocean. Hare Krishna, all glories to the Pacific Ocean. और हमने कहा हरे कृष्ण, और उन्होंने हाथ ऊंचे करके समुद्र की तरफ होकर ऐसा किया। यही एक समय याद है मुझे जब प्रभुपाद ने जय घोष में कुछ और भी कहा था। ये हम सबको छू गया। हम सोच रहे थे प्रभुपाद कितने खुले विचार के हैं कि वे उस जगह की महानता को सम्मानित कर रहे थे जहाँ हम थे। I was living in the Bay Area at the time, basically as a hippie. मैं उस समय बे एरिया में हिप्पी की तरह रहता था, पर हमेशा मेरे मन में आध्यात्मिकता समझने की इच्छा होती थी, इसलिए मैं अपने आप को हिप्पी नहीं पर एक साधक समझता था। और जब मैंने सुना कि रथ यात्रा गोल्डन गेट पार्क से हरे कृष्ण भक्तों द्वारा हो रही है 1968 में, तब मैंने मन बनाया कि वहां जाऊंगा। और मुझे याद है मैं वहां कुछ मील चल के गया, इसलिए मैं देर से पहुंचा यात्रा के अंत में। और मैंने जगन्नाथ को तट पर देखा, समुद्र की तरफ देखते हुए। मैं पहले मंदिर में कुछ बार गया था, पर इस पल जैसे ही मैंने जगन्नाथ को देखा समुद्र की तरफ देखते हुए, मेरे अंदर एक अद्भुत चेतना जागृत हो गई। और बस उसी पल से मैंने निर्णय किया कि अब मैं भक्त हूँ। And at that moment, I became a devotee. Long towards summer, Prabhupada went to Montreal. गर्मी आते आते प्रभुपाद मॉन्ट्रियल कनाडा चले गए थे, और मैंने उनको पत्र लिखा, अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि मैं कृष्ण भावनामृत और उनको भूल नहीं पा रहा हूँ और मैं समर्पण करना चाहता हूँ। और उन्होंने वापस लिखा, मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें कैसे खो दिया। मैं कृष्ण के सामने रोता था, मैंने कीर्तनानंद को कैसे खो दिया। और उन्होंने मुझे उनसे मॉन्ट्रियल आके मिलने को कहा, और मैं गया और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, अब यह निश्चित है कि हम अलग नहीं हो सकते। One morning, one of the devotees asked me to bring over some bhoga to Srila Prabhupada. एक सुबह एक भक्त ने मुझसे कहा कि मैं भोग लेकर के श्रील प्रभुपाद के पास जाऊं, तो मैं सब्जियां लेकर वहां पहुंची और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, और हिमवती ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। मैंने उनको सब्जियां दी और कोने से मैंने नीचे देखा, श्रील प्रभुपाद बैठकर जाप कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, हिमवती, दरवाजे पर कौन है? वे बोली, कंचन वाला भोग लेके आई है। तब प्रभुपाद ने कहा, उसे अंदर आने को। तो मैं अंदर गई। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। ये एक बिल्कुल अनोखा अद्भुत अनुभव था, और मैंने तुरंत उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। प्रभुपाद ने मुझसे बैठने को कहा और हम लोग ने मिलकर जाप किया। वो बहुत ही अद्भुत समय था। So when Prabhupada came, they rented him a small room, and I got the opportunity to spend. जब प्रभुपाद आए तो उनके लिए एक छोटा सा कमरा लिया गया। मुझे मौका मिला कुछ दिनों तक, शायद 5 दिन, प्रभुपाद के साथ रहने का। वो बस एक कमरा था जिसके एक कोने में सिंक और चूल्हा था, जहाँ कुछ पकाया जा सकता था। मैं उस सिंक के नीचे सोया करता था। पहली रात मैं इतना घबराया हुआ था कि मैं सो ही नहीं पाया। लगभग 1 बजे रात को मैंने प्रभुपाद को उठते हुए सुना। उन्होंने लाइट भी नहीं जलाई और सीधे अपने जपमाला पर जप करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, क्या करूं, उठूं या सोया हुआ बनकर रहूं। समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं किया, सोए होने का ढोंग किया। अगले दिन भी वही हुआ। मैं फिर इतना घबराया हुआ था कि मैं सो ही नहीं पाया। जब प्रभुपाद उठकर जप करने लगे रात के 1 बजे, तो मैं भी हिलने लगा। बताया कि मैं भी उठ चुका हूँ। तब प्रभुपाद ने लाइट जलाई और कहा, ओह, तुम भी उठ गए। मैं बोला, प्रभुपाद, मैं इतना घबराया हुआ हूँ, मैं सो ही नहीं पाया। उन्होंने कहा, अच्छा है, ये अच्छी बात है।
मुझे लगता है सोना वक्त की बर्बादी है। मुझे सोना पसंद नहीं और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य सोएं। फिर उन्होंने कहा, वास्तव में हमारा लक्ष्य है खाना, सोना, संभोग क्रिया और अपनी सुरक्षा, इन सभी को शून्य करना। हम ऐसा कहते नहीं हैं, लेकिन ये हमारा असली लक्ष्य है। And defense zero. We don't say that, but that is the aim. The Montreal Temple, was going very well, but we always had a difficult time paying the monthly rent. And there was some danger that they would lose the temple. मॉन्ट्रियल मंदिर का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब लगता था कि मंदिर हम खो देंगे क्योंकि किराए के पैसे ही नहीं थे। और शिला प्रभुपाद ने मुझसे और प्रद्युम्न से कहा कि हम भारतीय समाज के लोगों से मिलें, उन्हें बताएं कि हम यहाँ एक राधा कृष्ण मंदिर बना रहे हैं और उनकी सहायता चाहते हैं। लेकिन किसी भी तरह प्रद्युम्न और मैं उस आदेश पर अमल नहीं कर पाए। शायद हम समझ नहीं पाए कि इसे कैसे करना है। लेकिन एक काम आता था मुझे। मैं एयरपोर्ट पर जाकर पैसे मांगना जानता था। मैं बस एक 17 साल का लड़का था। मुझे याद है एक दो बार मेरे पास प्लेन की टिकट के लिए पैसे कम पड़ गए थे। मैंने सोचा इस समय भी यही करता हूँ। मैंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, क्या आप $1 दे सकते हैं? मेरे पास टिकट के लिए पैसे थोड़े से कम हैं। और दया करके कुछ लोग कुछ डॉलर्स दे दिया करते थे। यहाँ भी मैंने कोई अलग मेहनत के बजाय एयरपोर्ट पर जाकर वही करना शुरू कर दिया। मैं कुछ $100 जमा कर पाया और उसे मंदिर के लिए किराए के तौर पर दे दिया। मुझे पता भी नहीं था कि प्रभुपाद को इस बात की खबर थी। लेकिन 4-5 साल बाद अचानक प्रभुपाद ने मुझसे कहा, मुझे याद है जब तुमने मॉन्ट्रियल मंदिर को बचाने के लिए पैसे जमा किए थे। मैं बहुत भावुक हो गया ये जानकर कि प्रभुपाद को मेरे बारे में याद था कि मैंने मंदिर की मदद के लिए कुछ सेवा की थी। मुझे बहुत अचंभा हुआ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि प्रभुपाद को इस बात का पता है या वो इस बात को याद रखेंगे। मैं कभी नहीं भूलूंगा कितने ही तरीकों से प्रभुपाद ने हमेशा अपने शिष्यों पर दया और प्रेम ही दिखाया। I'll never forget, in so many ways, Prabhupada always expressed such kindness and love for his disciples. Janardhan arranged one time for Prabhupada to go speak to the professor. एक बार जनार्दन ने प्रभुपाद को मैगिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करने का आमंत्रण दिया। वहाँ शिक्षकों की मीटिंग जैसा कुछ था, पर प्रभुपाद तो मांस खाने वालों के साथ डिनर पर नहीं जाएंगे। पर उन्होंने कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रचार कार्य के लिए है, इसलिए मैं जाता हूँ। तो प्रभुपाद फिर उनके साथ डिनर पर गए। बॉस्टन के बाद प्रभुपाद मॉन्ट्रियल गए और पूरी गर्मियां वहां बिताई। वो वहां इसलिए भी थे क्योंकि उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था और उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ रहा था। ऐसी बातें भी हो रही थी कि क्या वे अब कभी अमेरिका वापस आ भी पाएंगे। एलन गिन्सबर्ग मदद कर रहे थे, ब्रह्मानंद वकीलों के साथ काम कर रहे थे उनका वीज़ा दिलाने के लिए। उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है नए वीज़े के लिए, प्रभुपाद को देश छोड़ना होगा कम से कम 3 महीने के लिए। तो प्रभुपाद कनाडा चले गए। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वीज़ा मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मॉन्ट्रियल कनाडा को ही हम दुनिया का हेडक्वार्टर्स बना लेंगे। कई भक्त गर्मियों में वहाँ आए, फिर अगस्त तक आखिरकार उनका वीज़ा आ ही गया। And then about in August sometime it came through. He got it. This building is the first temple they had in Buffalo. ये बिल्डिंग बफेलो का पहला मंदिर था। ये सेल एवेन्यू पर था, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं। मैंने वहाँ भक्तों को देखा, वो रविवार प्रीति भोज का प्रचार कर रहे थे। मैं उन्हें रात में कक्षा में देखता था जहाँ वो करताल बजाते और अगरबत्ती जलाते थे। मुझे उनके बारे में जानने की उत्सुकता थी। एक कक्षा होने वाली थी, वैदिक शास्त्रों का परिचय। रूपानुगा प्रभु ने यह कक्षा दी थी कृष्ण भावनामृत पर। रूपानुगा प्रभु ने ही प्रभुपाद को बुलाया था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में भक्ति योग की क्लासें दे रहे थे। शिला प्रभुपाद एक हफ्ते वहाँ रहे।
वो रूपानुगा प्रभु के घर पर रुके। उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पर जाकर लेक्चर दिए, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो में भी। रोज़ाना मंदिर पर भी वे क्लास दिया करते थे। जैसे ही मैं मंदिर में आया, मुझे एक पुजारी बना दिया गया। सिर्फ पुजारी नहीं, मुख्य पुजारी बना दिया गया। हालांकि मुझे विग्रहों के नाम तक ठीक से याद नहीं थे। फिर बाद में मुझे खजांची भी बना दिया गया। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो का विद्यार्थी था और अब मैं एक भक्त भी था। हम कॉलेज जाते थे पूरी धोती पहनकर, सर मुंडे हुए और तिलक लगाकर। लेकिन सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता तो मैं सुबह प्रभुपाद के साथ बिताता, उनकी बातें सुनता। तो लगभग हर सुबह मैं उनके साथ ही रहता था। एक बार मैं प्रभुपाद के तेज को देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं उस समय हठ योग भी करता था। प्रभुपाद ने तुरंत मुझे देखा और कहा, हमारी प्रणाली भक्ति है, न कि कोई सिद्धि योग। तब मुझे समझ आया कि प्रभुपाद कितना ध्यान देते हैं। ये उनकी बहुत गहरी सोच थी। वे बहुत ही अच्छे निर्देश देते थे। एक बार जब वो हमसे बात कर रहे थे तो बीच में रुककर उन्होंने अपनी माला उठाई और जप करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जब भी समय मिले तो जप करो। मुझे एक सीख याद है जो उन्होंने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था, अपने गुरु भाइयों को सीख देने की कोशिश मत करो। एक बार प्रभुपाद यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति उनके पास रेंगता हुआ आया और बोला, प्रभुपाद, भगवान को देखने के लिए आपको कितना नीचे झुकना पड़ता है, कितना विनम्र होना पड़ता है। वो प्रभुपाद की तरफ रेंग रहे थे। बाद में प्रभुपाद ने उनको दीक्षा भी दी। उनका नाम कुशाकृत प्रभु था। वो शुरू में एक अजीब व्यक्तित्व थे, लेकिन प्रभुपाद की कृपा और भक्तों की संगति से वो एक संस्कृत एडिटर बन गए। By Prabhupada's mercy and by the mercy of the Association of Devotees, he became a Sanskrit editor. That record went वो everywhere. रिकॉर्ड हर जगह पहुंचा। हरे कृष्ण का पहला रिकॉर्ड। किसी ने अभ्यास नहीं किया था, लेकिन सब कुछ बहुत सुचारू रूप से हो गया। द हैपनिंग नाम का रिकॉर्ड। उस वक्त WBAI एक बहुत जाना माना रेडियो स्टेशन था। एक व्यक्ति पूरी रात 11 बजे से 8 बजे तक उस रेडियो पर होता था। वो सबसे प्रसिद्ध नाइट स्टेशन था। मैं रिकॉर्ड लेकर वहां गया। वो व्यक्ति अजीब हरकतें करने के लिए मशहूर तो था ही, पर उसने उस रिकॉर्ड को रुकने नहीं दिया। अगले सुबह तक बार बार वही कीर्तन चलता रहा। लोगों ने दूसरे दिन उसे फोन करके कहा, हे, हमें ये बहुत पसंद आया, और उसने फिर वापस से ऐसा ही किया। He was talking about Krishna in the forest of Vrindavan. And he would close his प्रभुपाद eyes वृंदावन में कृष्ण की बात कर रहे थे। वो आंखें बंद करके बैठ जाते, मसाज हो रहा होता और कृष्ण की लीला वो सुनाते। वो बताते कि ग्वाल बाल कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो घर आकर कहते हैं, माँ, आज कृष्ण ने एक बहुत बड़ा राक्षस मारा। कृष्ण कितने अद्भुत हैं। वो नहीं जानते कि वो भगवान हैं। वो बस सोचते हैं कि कृष्ण कितने अद्भुत हैं। और जब वो ऐसी बात करते और रुकते तो आपको पता नहीं चल पाता कि आप कहाँ हैं। आप किसी और ही दुनिया में चले जाते थे। आपको अपनी पहचान, आप कौन हैं, कहाँ हैं, याद करना पड़ता था। श्रवणकर्ता को किसी और स्थान पर ले जाने की शक्ति उनके कथा वाचन में निहित थी। मैं कथा के उस मधुरता की आदी हो गई थी। एक बार वो बता रहे थे कि कैसे वृंदावन में कोई भय नहीं होता। कृष्ण और उनके गोपजन मेढक का खेल खेल रहे हैं। उनके अंदर कोई भय नहीं, वो बस खेल में मग्न है। और अचानक मुझे एहसास होता है कि मैं भी बिना भय के हो चुकी हूँ। मुझे समझ आया कि मैं हमेशा भयभीत रहती हूँ। आपको पता भी नहीं चलता, पर आपके मन के भीतर आप हमेशा किसी न किसी चीज़ से डरते रहते हैं। और उनको सुनते ही कुछ पलों के लिए मुझे असली निर्भयता का अनुभव हुआ। कार्तिकेय मुझे कह रहे थे बाद में, ये अनुभव कितना अद्भुत था। कुछ पलों के लिए मैंने महसूस किया कि मैं बिल्कुल निर्भय हूँ। इसी तरह जब वो वृंदावन की बात करते तो आप वहीं पहुंच जाते। प्रभुपाद लीला में होते थे, सब कुछ देख रहे होते थे। आप उसे देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते थे।
तो मैं उस चीज़ की बहुत आदी हो गई थी। फिर जब वो भारत चले गए तो हर समय मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, जब स्वामी जी वापस आएँ तो मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैंने स्वामी जी को पत्र लिखा अपनी इसी इच्छा को व्यक्त करते हुए, और उन्होंने वापस मुझे लिखा, मैं वृंदावन में एक घर बनवाऊंगा जहां तुम और तुम्हारे पति आकर सदा के लिए रह सकते हो। पत्र के अंत में उन्होंने लिखा, मैं तुम्हारा मन जानता हूँ। वो सब कुछ जानते थे कि मैं क्या सोच रही हूँ। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो सब कुछ जान रहे थे। जब वो वापस आए तो मेरी इच्छा पूरी हुई। उन्होंने मुझे उस पूरे साल उनके साथ रहने, उनकी सेवा करने का अवसर दिया। ये एक बहुत मधुर समय था, क्योंकि वह उस समय से थोड़ी देर पहले का ही था जब संगठन बहुत बड़ा हो गया था। उस समय प्रभुपाद अपने मस्तिष्क के दौरे से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए थे। उन्हें कुछ तकलीफ थी, तो ऐसा लगता था जैसे मैं उनके माता का कर्तव्य निभा रही हूँ और वे हमारे पिता का। हम उनके बच्चों जैसे थे, हम एक परिवार की तरह थे। सब कुछ प्रेम से भरा हुआ था, और वो एक अनोखा मधुर समय था जो शायद प्रभुपाद के लिए भी बहुत खास था। Everything was out of love. And that's a rare, sweet time that I think he also thinks is very special. I took this walk with Purushottam and Jadharani and Srila Prabhupada, and it was snowing. मैं पुरुषोत्तम जदुरानी और श्रील प्रभुपाद हम लोग एक बार शहर के बीच से गुजर रहे थे और बहुत बर्फ गिर रही थी। सामने रोड पर दो युवा लड़कियां खड़ी थी। उन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए थे और बर्फ उन पर गिरती जा रही थी। जदुरानी और मैं रोड के उस पार अचंभे में उन्हें देख रहे थे, सोच रहे थे कि बर्फ में छोटे कपड़े पहनकर आना कितना अजीब है। और वो लड़कियां रोड के इस पार जदुरानी और मुझे साड़ी पहने हुए देख रही थी। श्रील प्रभुपाद ने इस हास्यपद स्थिति को देखा और कहा, तुम उन्हें देख रहे हो और वो तुम्हें देख रही हैं। उनकी तपस्या सांसारिक संबंधों के लिए है और तुम्हारी तपस्या कृष्ण के लिए है। Okay, it's the late summer of '68, the full nectarine. ये 1968 के गर्मी की बात है। इस फिल्म का नाम पूर्ण अमृत था। नयन अभिराम और मैंने मिलकर ये फिल्म बनाई थी। उसने अभिनय, वेशभूषा और अच्छी जगह ढूंढने पर ध्यान दिया। ज़्यादातर फिल्म ब्रुकलिन बॉटनिकल गार्डन्स में फिल्माई गई थी, और यहाँ हमारे पास एक भक्त है जो कृष्ण का रूप धरे हैं। फिल्म का ये हिस्सा पहले ही कुछ उत्तेजना का कारण बन चुका था, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो ब्रह्मचारिणियाँ हैं। ये दो ब्रह्मचारिणियाँ गोपी बनने का अभिनय कर रही हैं। आप इन्हें अभी देख सकते हैं। तो हम यहाँ वृंदावन की एक छोटी सी झलक दिखा रहे हैं। These two brahmacharinis are supposed to be gopis, so we're showing a little scene from Vrindavan. यहाँ राधा और कृष्ण वृंदावन में चल रहे हैं। इस फिल्म को बनाने से पहले हमने भक्त ब्रह्मचारिणियों को सजाया और गार्डन में ले आए थे। हमने श्रील प्रभुपाद को बताया, जो उस वक्त हालांकि न्यूयॉर्क में नहीं थे, कि हमने क्या किया है। दो भक्तों को राधा कृष्ण की तरह सजाया और उनकी पूजा की। श्रील प्रभुपाद हम पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, यह सबसे बड़ा अपराध है। हम सब बिल्कुल उदास हो गए, लेकिन किसी तरह हमने हौसला जमाया और श्रील प्रभुपाद ने हमें फिर से वही करने की अनुमति दी, इस नई समझ के साथ कि ये लोग बिल्कुल भी राधा कृष्ण नहीं हैं। बाद में हम प्रभुपाद को इसी गार्डन में घुमाने लाए और उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल वृंदावन जैसा है। उसके बाद से हमने उसको ब्रुकलिन वृंदावन कहना शुरू कर दिया। वो बता रहे थे कि सारे पार्क, नगर उद्यान और बागीचे बनाने की इच्छा असल में वृंदावन को फिर से बनाने की हमारी आंतरिक आत्मिक इच्छा का एक रूप है, और हमने तो इसे असल में वृंदावन ही बना दिया था इस फिल्म को यहाँ फिल्मा के। जिन दो लड़कियों ने राधा और कृष्ण का रूप निभाया वो असल में बहनें थीं, इंदिरा और एकायनी। इंदिरा ने कृष्ण का रूप निभाया और एकायनी ने राधा जी का। वो दोनों मंदिर के बाहर रहती थीं। इंदिरा, जिसने कृष्ण का रूप निभाया, उसने जो फल खाया हमने उसे प्रसादम के रूप में ग्रहण किया था। उस समय दामोदर शायद वो आंदोलन में आने से पहले एक अपरंपरागत फिल्म निर्देशक थे।
और मैं उस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई ही कर रहा था। तो दामोदर और मैंने मिलकर इस पे काम किया और इसके बाद प्रभुपाद ने हमें सटीक आदेश दिए कि वो भगवद गीता पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें महाभारत युद्ध के दृश्य हों, हाथी घोड़े हों। उन्होंने पूरी एक बैठक ली, हमें समझाया कि फिल्म कैसे बननी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, जब समय आएगा मैं इसका निर्देशन करूंगा। मैं कभी नहीं समझ पाया कि उनका ये कहने का क्या अर्थ है, क्या दैवीय शक्ति के माध्यम से या वे स्वयं ऐसा करेंगे। लेकिन वो इस बारे में बहुत गंभीरता से बोले और हमने उस आदेश को बहुत गंभीरता से लिया। दामोदर और मैं मंदिर से बाहर सिनेमा जाकर नॉर्मल फिल्में देखते क्योंकि हमें लगता था कि इससे हमें मदद मिलेगी। हम ऐसा सोचते थे कि हम प्रभुपाद के आदेशों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे अगर हम आज के फिल्में बनाने के तरीकों से परिचित रहे। That we could only fulfill Prabhupada's instructions by being cognizant with contemporary filmmaking. And I remember Srila Prabhupada came down from his quarters. मुझे याद है एक बार श्रील प्रभुपाद अपने कमरे से नीचे आए और हम सब मिलकर ब्रुकलिन बोटेनिकल गार्डन जाने वाले थे। एक ही गाड़ी थी। मुझे नहीं याद कि मुझे उसमें बैठने कैसे मिल गया, लेकिन मैं पिछली सीट पर थी और वो दो भक्त जो राधा कृष्ण बने थे वो पिछली सीट पर थे। ब्रह्मानंद प्रभु थे, श्रील प्रभुपाद थे और एक ड्राइवर था। और जो भक्त कृष्ण बनी थी उसने कहा कि क्या वो प्रभुपाद को पंखा झुला सकती है। तब प्रभुपाद ने कहा, नहीं, भक्त कभी कृष्ण से सेवा स्वीकार नहीं करता। वो इस अभिनय में हमारा साथ दे रहे थे, परंतु बाद में हमें समझ आया कि हम जो कर रहे थे वो सही नहीं था। और गाड़ी में बैठने से पहले ही जब प्रभुपाद अपने कमरे से नीचे आए, हम फुटपाथ पर खड़े थे। हमने श्रील प्रभुपाद, राधा और कृष्ण सभी के लिए मालाएं बनाई थी, लेकिन एक माला पता नहीं कैसे खो गई थी। तो हमने पहले कृष्ण को माला पहनाई, फिर श्रील प्रभुपाद को पहनाने गए। जब हम उन्हें पहना रहे थे वो उसे उतार कर राधा जी बनी भक्त को पहना दिए। Saved the situation by saying, well, I can understand by this impulse that you want to know about the spiritual world, Radha and Krishna, Goloka. जब प्रभुपाद ने देखा कि हम अपने किए से कितने निराश हैं, उन्होंने स्थिति को बचा लिया ये कह के, ठीक है, मैं तुम्हारे इस भाव को समझ सकता हूँ। तुम व्रज की दुनिया के बारे में जानना चाहते हो, राधा कृष्ण, गोलोक, वृंदावन, मैं तुम्हें ये सब अब समझाता हूँ। फिर वहीं बैठकर उन्होंने ब्रह्म संहिता की प्रार्थनाएं सुनाई और उनकी विस्तृत व्याख्या की। चिंतामणि धाम के बारे में, राधा कृष्ण वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। उस समय वो अपनी चेतना से हमें गोलोक ही ले गए। और जब हम वहाँ से वापस निकल रहे थे, प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया, ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ हम एक बहुत अच्छा मंदिर बना सकते हैं। तुम इस जमीन को दान में लेने का इंतजाम करो, हम यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर बनाएंगे। प्रभुपाद की दृष्टि इतनी ऊंची थी कि वो ऐसे ही बड़े कार्य विश्वास के साथ आदेशित किया करते थे। तो मुझे ये काम करना ही था। ये पार्क हालांकि न्यूयॉर्क नगर निगम का है। This park is a municipal park by the city of New York. The film Gurudev was shot in the spring of 1969. ये फिल्म गुरुदेव 1969 के वसंत में फिल्माई गई थी। हम श्रील प्रभुपाद के न्यूयॉर्क आने का इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पर। उनके लिए एक विशेष आसन तैयार किया गया था, एक तरह का सिंहासन। सब लोग इकट्ठा हुए थे। उनकी हवाई जहाज आई और कीर्तन शुरू हो गया। यहाँ ये सुबल, कंचनबाला और लीला सुख है। और श्रील प्रभुपाद आए और एकदम से बहुत भीड़ बढ़ गई और मैं तुरंत उनके पास नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये रहे प्रभुपाद कॉरिडोर से नीचे आते हुए, और जोरदार कीर्तन जारी है। हवाई अड्डे में मौजूद हर कोई सोच रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। श्रील प्रभुपाद लॉस एंजल्स से आए थे। ये हवाई अड्डे पर उनके आने के समारोह एक अत्यंत आनंदमय और गंभीर अनुभव हुआ करते थे, क्योंकि हम उनसे दूर थे, वो हमसे दूर थे और तैयारियां बहुत उत्साह से होती थी। सब लोग देर से ना पहुँचे इसके लिए भाग दौड़ करते थे और कितने भक्त काफ़ी जल्दी पहुंचकर इंतज़ार किया करते थे। फिर प्रभुपाद की फ्लाइट आती और उनके चरण धरती को छूते
हम सब बहुत खुश होते थे उनके आगमन कीर्तन में। मैंने जो कैमरा इस्तेमाल किया है वो प्रभुपाद के पीछे से आ रही तेज़ रोशनी की वजह से अच्छा फिल्म नहीं बना पाया। उनके शरीर की छवि परछाई जैसी आ रही थी। मैंने कोशिश की हवाई जगह के पीछे लिखे हुए शब्द यूनाइटेड को भी फिल्म करूं, क्योंकि एक बार फिर हम श्रील प्रभुपाद के साथ हो गए थे, एक हो गए थे, यूनाइटेड। अब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में बैठे हैं और उन्होंने कहा, आप भगवान का कोई भी नाम जप सकते हैं, अल्लाह या कोई भी सत्य नाम, लेकिन क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। Hare Krishna mantra. There was a whole bunch of us waiting at this one gate, and all of a sudden somebody saw हम सब लोग Prabhupada इस coming from गेट this पर other उनका gate. इंतजार कर रहे थे। अचानक किसी ने देखा कि प्रभुपाद दूसरा गेट से आ रहे हैं। उसने कहा, ओह, प्रभुपाद उधर से आ रहे हैं। हम सब उन्हें प्रणाम करने के लिए दौड़े और उनके चरणों में गिर गए। मैं एक नई भक्त थी, मुझे नहीं पता था कि दंडवत में कितनी देर तक नीचे रहा जाता है, और मैं काफ़ी देर तक नीचे रही। फिर मैंने थोड़ा सर उठाकर देखा कि क्या सब लोग उठ चुके हैं। हर कोई उठ चुका था और प्रभुपाद सीधे मेरे ऊपर खड़े थे। मैंने उनकी आंखों में देखा, उन्होंने मेरे सर पर थपकी दी और फिर मैं उठी। ये मेरा प्रभुपाद के साथ पहला अनुभव था। मेरी दीक्षा पत्र द्वारा कुछ महीनों पहले ही हुई थी, प्रभुपाद के न्यूयॉर्क आने से पहले। I was initiated by mail probably a few months before he had come to New York. Between the heads and shoulders of the people, just लोगों के सिर और कंधों के बीच से मैंने हवाई अड्डे पर प्रभुपाद को झलक भर ही देखा था। मैं उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, व्यक्तिगत रूप में तो कभी नहीं। मेरे इंद्रियां विचलित नहीं थी, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए थे। शायद एक बार सभी ड्रग्स ट्राई किए होंगे, परंतु मैं एक प्रशिक्षित निरीक्षक था फिजियोलॉजी लैब वगैरह को लेकर के, और मुझे निश्चय है कि वो आम आदमी की तरह नहीं चल रहे थे। आम आदमी का सर थोड़ा हिलता है, लेकिन प्रभुपाद इतनी सहजता से चल रहे थे जैसे कोई हंस या पंछी पानी पर तैर रहा हो। ये मेरे लिए उनकी पहली झलक थी। और उसी समय मैंने देखा वो प्रकाशमय थे, और मैंने ऐसा प्रकाश पहले कभी नहीं देखा था, न सपनों में, न कोई धार्मिक अनुभव में। ये इतना सच था जैसे मैं ये लकड़ी का दरवाज़ा अभी अपने आंखों से देख रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा, मैं एक प्रशिक्षित प्रेक्षक था। फिर मैंने उन्हें प्रणाम किया, और जब मैं प्रणाम करके उठ रहा था तो वो मुझे गहरी नज़र से देख रहे थे। वो तीक्ष्ण दृष्टि किसी भी व्यक्ति को ये एहसास दिलाने में सक्षम थी कि ये महान व्यक्तित्व सीधे हमारी आत्मा को देख रहे हैं। पीछे मुड़कर मैं सोचता हूँ कि हम कितने ग्रहणशील थे। प्रभुपाद कहते थे, कितने प्यारे चेहरे हैं सब, लेकिन असल में जब तक प्रभुपाद ने हमें अपने साथ नहीं जोड़ा था, तब तक हमारा कोई स्थान नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, ना ही कोई हमारी उपयोगिता थी। no position, no power, no use until Prabhupada joined us to him. But I remember one time when I did go to the मुझे याद है एक बार जब मैं प्रभुपाद के साथ हवाई अड्डे पर गया था, मैं प्रसाद बांट रहा था जब कीर्तन चल रहा था। पहले तो मैं प्रसादम अभक्तों को दे रहा था जो वहाँ से देखते हुए गुजर रहे थे। जब अधिकारियों ने हमारा कीर्तन रोक दिया तो प्रभुपाद थोड़े नाराज़ हुए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अब प्रसादम भक्तों को दो, आने जाने वाले लोगों को नहीं। और उन्होंने कहा, परोपकार घर से शुरू होता है। ये सब मालाएं गंधराज के फूल की थीं। हमने पश्चिम के भक्तों से सुना था कि प्रभुपाद को गंधराज बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत खुशबूदार होते हैं। तो जब मैं मंदिर के लिए फूल खरीदने जाता तो हम पुष्प की दुकान पर पुराने गंधराज खरीदते थे जो सस्ते मिल जाते थे। वो सस्ते होने के बावजूद ज़्यादा खुशबूदार होते थे क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था कि एक फूल तब सबसे ज़्यादा महकता है जब वो मुरझाने वाला होता है, वो ताज़े होने पर इतनी सुगंध नहीं देते। और प्रभुपाद ने कहा था जो फूल सुगंध रहित होते हैं वो कलयुग के निरर्थक फूल हैं, इसलिए उन्हें गंधराज के पुष्प पसंद थे। क्या ये माला में लगे गुलनर भी सुगंध दे रहे थे? नहीं, वे इतने सुगंध युक्त नहीं थे। were not very fragrant.
Srila Prabhupada got in the car in the airport. श्रीला प्रभुपाद कार में बैठकर मैनहट्टन वापस आए। श्रीला प्रभुपाद का अपार्टमेंट अभी भी 26 सेकंड एवेन्यू पर था। भक्तों ने उसे दोबारा पोंछ दिया था, जमीन सुधार दी थी, सब कुछ चमकाकर सुंदर बना दिया था। श्रीला प्रभुपाद सीढ़ियों से ऊपर गए। उनका अपार्टमेंट दूसरे माले पर था। जब उन्होंने अपार्टमेंट का दरवाज़ा देखा तो हमारी तरफ मुड़कर बोले, मेरा पुराना घर। ये सुनकर हम सब बहुत प्रसन्न हुए। हमने छत को आसमान की तरह नीला पोता था और ये एक यादगार मिलन था। It was a wonderful reunion. I remember that globe that Prabhupada had in his room in 26 मुझे वो ग्लोब याद है जो प्रभुपाद के पास 26 सेकंड एवेन्यू में था। एक बार मैं प्रभुपाद के साथ वहाँ था। उन्होंने ग्लोब को देखा, उसे थोड़ा घुमाया और उन्होंने कहा, अगर उन्हें मेरी योजनाओं का पता चल जाए तो वो मुझे बंद कर देंगे, कैद कर देंगे। वो दुनिया भर में आंदोलन को फैलाने की बात कर रहे थे। उस समय कोई विदेशी शाखाएं नहीं थी। ये ऐसा ही था जैसे कोई हंसी में कह रहा हो, कोई रशिया जाएगा, कोई चाइना जाएगा, कोई इंग्लैंड। हम सब इसी का सपना देखते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि आंदोलन न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी इलाकों और कुछ कॉलेज कैंपस से आगे बढ़ पाएगा। बफेलो में भी एक कॉलेज कैंपस था जहां रूपानुग प्रभु सफलता से एक सेंटर चला रहे थे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हरे कृष्ण कॉलेज स्टूडेंट्स में प्रसिद्ध होगा। हमें लगा ये तो सिर्फ पढ़ाई छोड़ देने वालों को ही आकर्षित करेगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आंदोलन हिप्पी कल्चर से आगे कभी बढ़ पाएगा। और 61 सेकंड एवेन्यू लेने से पहले वो एक सूट का शोरूम था, तो हमने उसके बड़े दर्पण बचा लिए और उनसे ओटले बना दिए। हमने एक ओटले में व्यास आसन भी रख दिया। एक पत्र ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को लिखा उस सूट पैलेस के बारे में। उन्होंने उसे अब भी पैलेस कहा, जबकि वो बिल्कुल महल जैसा नहीं था। प्रभुपाद ने एक पत्र में हास्य करते हुए लिखा, ब्रह्मानंद ने तो मुझे एक महल ढूंढ दिया है। The New York devotees had just acquired this new न्यूयॉर्क के भक्तों ने दूसरा न्यूयॉर्क मंदिर 61 सेकंड एवेन्यू पर लिया। वो प्रभुपाद को लिख रहे थे कि नया मंदिर बिल्कुल एक महल जैसा है। मैं इस बात से बहुत चिंता में थी। प्रभुपाद आएंगे और जब ये मंदिर देखेंगे तो बहुत निराश होंगे। वो उनसे कह रहे हैं कि ये महल जैसा है, लेकिन ये तो बस एक दुकान है। पिछले वाले से थोड़ा अच्छा है, लेकिन है तो बस दुकान ही। और वो बहुत नाराज़ होंगे, शायद क्रोधित भी होंगे, बहुत बुरा लगेगा। फिर जब प्रभुपाद आए और वैसा पर बैठे और उन्होंने कहा, मैंने कृष्ण से एक चंद्र मांगा था, लेकिन कृष्ण ने मुझे इतने सारे चंद्र समान लड़के लड़कियां भेज दिए। I prayed to Krishna to send me one moon, but Krishna has sent me so many moon-like boys and girls. That's what he said. मुझे याद है एक लेक्चर में जो प्रभुपाद ने यहाँ दिया था, उसमें उन्होंने कहा ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य। फिर वो रुक गए और बस तिमिरान्धस्य पे प्रवचन दिया। उनके सामने भागवतम खुला हुआ था, लेकिन उन्होंने उस ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य पर ही प्रवचन दिया, गुरु के महत्व पर। There was one gentleman, an elderly gentleman, who walked one day into the temple, and he had a letter from Prabhupada, and the letter said that, Dear Mr. Such and Such. एक बूढ़े व्यक्ति एक दिन मंदिर में आए और उनके पास प्रभुपाद का भेजा हुआ एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय मिस्टर, जब मैं न्यूयॉर्क आऊँगा तब आप मुझसे मिल सकते हैं। ब्रह्मानंद ने मुझे उसे प्रभुपाद के अपार्टमेंट पर ले जाने को कहा। वह व्यक्ति किसी योग संगठन से जुड़ा हुआ था। वहाँ पहुंचकर वो व्यक्ति बहुत आदर से बात करने लगा और कहा, स्वामी जी, मुझे आपका आंदोलन बहुत पसंद है, लेकिन एक बात है, आपका एक शिष्य कह रहा था कि वो एक स्वामी रास्कल एवं धूर्त है। मुझे तो हमेशा लगता था कि वो एक पवित्र व्यक्ति है। मैं नहीं समझ पाता आपका शिष्य ऐसा क्यों कहेगा कि आपने कहा वो अच्छे नहीं हैं। प्रभुपाद ने पूछा, किसने कहा ऐसा आपसे?
तो उस व्यक्ति ने कहा, आपने नहीं बोला ऐसा? प्रभुपाद ने कहा, अगर उन्होंने कहा कि मैंने कहा है और मैंने नहीं कहा तो वो व्यक्ति धूर्त है। तब वो व्यक्ति शांत हुआ। फिर प्रभुपाद ने कुछ बातें कही और अपने किताबों में से एक छोटी सी नीली किताब निकाली, उसे खोलकर उस व्यक्ति को दिया और कहा, आप इस पुस्तक को जानते हैं? उस व्यक्ति ने देखा, ओह, इन स्वामी डॉक्टर और वेदांत सोसाइटी द्वारा लिखी हुई पुस्तक, हाँ बिल्कुल जानता हूँ। वो जानकर खुश हुआ कि यह पुस्तक प्रभुपाद के पास है। प्रभुपाद ने पुस्तक खोली और कहा, अनुवाद पढ़िए। उस व्यक्ति ने पढ़ा, हमेशा मुझे याद करो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उन्होंने अनुवाद अच्छा किया है, वो बहुत विद्वान है। फिर तात्पर्य में बताइए क्या कहते हैं। व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया, इसका अर्थ कृष्ण को समर्पण करना नहीं है, बल्कि उस अपौरुषेय अजन्मा ब्रह्म को। प्रभुपाद ने कहा, देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो सब रास्कल है। फिर प्रभुपाद ने समझाया ऐसे लोग क्यों धूर्त हैं। उन्होंने भगवद गीता का संदर्भ दिया कि वो दुष्ट मानवता में नीचे माया से छीन लिए गए दानव प्रवृत्ति के हैं। क्योंकि देखिए, कृष्ण कह रहे हैं मुझे और वो कह रहे हैं नहीं, कृष्ण को नहीं, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। फिर प्रभुपाद ने कहा, कभी कभी सोए हुए आदमी को जगाने के लिए कड़क शब्दों की आवश्यकता होती है। फिर प्रभुपाद ने कहा, वैसे ये मेरा कथन नहीं है कि ऐसे लोग धूर्त हैं, ये कृष्ण का कथन है। प्रभुपाद ने हाथ उठाकर कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभुपाद ने 61 सेकंड एवेन्यू पर एक दीक्षा समारोह किया था और फिर प्रभुपाद अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। एक फोटो है जहां प्रभुपाद भक्तों से घिरे हुए हैं जो भाव विभोर कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। यज्ञ समाप्त हो चुका था, सब दीक्षित हो चुके थे, सबको नाम मिल चुके थे। प्रभुपाद अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे, अपने आम राजसी चाल के अंदाज में, सर थोड़ा उठाए हुए। सब कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक प्रभुपाद ने कहा, हमने शिष्य परंपरा चैतन्य महाप्रभु से आगे बढ़ाई। न्यूयॉर्क मंदिर में कुछ लड़कियां थीं जो घर पर रहती थीं, स्कूल जाती थीं और मंदिर आती थीं। वो बहुत अच्छी लड़कियां थीं। प्रभुपाद चाहते थे कि वो स्कूल जाएं, अपने परिवार के साथ रहें और मंदिर आएं। मैं ज़्यादा हिप्पी थी, मैं घर छोड़कर आई हुई थी, मैं अलग परिस्थिति में थी। तो वो लड़कियां जब प्रभुपाद के पास आती तो मुझे बहुत बचकानी लगती थी, लेकिन वो प्रभुपाद से बहुत प्रेम करते थे। जब वो आते तो वो खुशी से चिल्लाती थी और उन्हें किसी संगीत रॉक स्टार की तरह देखती थी। मुझे ये देखकर शर्म आती थी, लेकिन वो बहुत प्रेम करती थी प्रभुपाद से। जैसे ही वो आते वे सब करके चिल्लाती थी। और एक बार प्रभुपाद ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने कहा, तुम इस आंदोलन की संतान हो, इसलिए तुम्हें बहुत गंभीर बनना चाहिए। Saradia and I were married in May of 69. मेरा और सरदिया का विवाह 1969 के मई महीने में हुआ था। उसके कुछ देर बाद मैं न्यूयॉर्क वापस आया था, क्योंकि मैं उस वक्त बुक बाइंडिंग की पढ़ाई कर रहा था, ISKCON प्रेस स्थापित करने में मदद के लिए। मुझे बहुत हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि प्रभुपाद चाहते हैं हम उनके क्वार्टर्स में रहें। 26 सेकंड एवेन्यू के पीछे एक अपार्टमेंट था। हमें वो सबसे पवित्र जगह लगती थी, क्योंकि वहीं प्रभुपाद के कमरे थे। हालांकि उस वक्त प्रभुपाद न्यूयॉर्क में नहीं थे, पर वो प्रभुपाद के कमरे थे। फिर भी प्रभुपाद ने आदेश दिया कि मैं और सरदिया, जो अभी अभी विवाहित हुए हैं, हमको रहने की जगह मिलनी चाहिए और हम उनके कमरों में रहें। ये बात मुझे बहुत छू गई कि वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। और हाँ, हम दोनों वहीं रहे। हमने लगभग 1-2 महीने वहीं बिताए 1969 के गर्मी के मौसम में। एक शाम वो कमरे में सबकी ओर देख रहे थे और उन्होंने कहा,
मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर एक मंदिर खोले, क्योंकि मैं बहुत उतावली थी और मैं सिर्फ 16 साल की थी, तो मैं ज़्यादा उतावली थी। मैं बोली, लड़कियाँ भी स्वामी जी? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा, नित्यानंद की अनुपस्थिति में जानवा देवी किसी से कम प्रचार नहीं कर रही थी। लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, सबको एक एक मंदिर खोलना है। ये बहुत मधुर प्रसंग था। मैं अपनी शादी के लिए बहुत देर से पहुंची। उस दिन श्रील प्रभुपाद अद्वैत के साथ मेरा विवाह करने वाले थे। मैं अंदर गई और मेरे बाल खुले हुए थे। मुझे नहीं पता था ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने मुझे देखा और कहा, बलाई तो लक्ष्मी देवी जैसी लग रही है। फिर उन्होंने हमारा विवाह किया। विवाह संस्कार और प्रतिष्ठा संस्कार के बाद श्रील प्रभुपाद व्यासासन पर बैठकर एक पापड़ खा रहे थे। उन्होंने पापड़ को कुछ हिस्सों में तोड़ा और कहा, प्रसादम प्रदान करने वालों की जय, प्रसादम तैयार करने वालों की जय, प्रसादम ग्रहण करने वालों की जय। Bye.